नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। यूएन में पीएम दहाड़ेंगे। जी हां, दहाड़ेंगे इसलिए क्योंकि उसी यूएन के मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत और भारत के लोगों पर, भारत की सरकार पर इतने तोहमत जड़े हैं, इतनी आलोचना की है और इतने आरोप लगा दिए हैं कि अब भारत को जवाब देना ही होगा। क्योंकि भारत जवाब नहीं देगा तो इमरान खान जो लगातार हर उस मंच से, हर एक वक्तव्य में भारत की सरकार को फासिस्ट सरकार बताते हैं और भारत के मुसलमानों की चिंता करते हैं, ये वो इमरान हैं जो अपने देश के मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारत के 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों की चिंता उनको ज्यादा है और ये चिंता वो यूएन के मंच पर जाहिर करते हैं, ये चिंता वो व्यक्त करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इमरान भारत की छवि पूरी दुनिया में क्या पेश करना चाहते हैं। भारत ने इसका जवाब अपने राजनीति के माध्यम से दे दिया है, लेकिन उस जवाब के पहले इमरान ने भारत के खिलाफ जो जहर उगला है उसे तो एक बार देखना जरूरी है। Now rules India. The hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. Mob lynching by cow vigilantes, frequent pogroms such as the one in New Delhi last year, discriminatory citizenship laws to purge India of Muslims, and a campaign to destroy mosques across India and obliterate its Muslim heritage and history are all part of this criminal enterprise. The New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900. तो सुना आपने इमरान ने भारत पर क्या क्या आरोप लगाए और यूएनजीए की किसी भी ऐसी मुलाकात में, किसी भी ऐसे संबोधन में इमरान इसी अंदाज में पिछले कई वर्षों से बोलते आ रहे हैं। हम उन्हें यूं ही बोलने दें? नहीं, भारत ने राजनयिक तौर पर इसका एक बहुत बढ़िया जवाब, जिसमें आक्रामकता थी, उसको दे दिया है। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री भी उस अंदाज में ऐसा जवाब देंगे जिसमें इमरान का जिक्र तो नहीं करेंगे, लेकिन इमरान को एक बड़ी नसीहत देने की एक बड़ी कवायद करेंगे जिसे पूरी दुनिया सुनेगी और उसे मानेगी। क्या जवाब दिया हमारे राजनयिक दुबे ने, आप जरा सुनिए। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this August forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country
where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. स्नेहा दुबे के जवाब की तारीफ पूरे देश में हो रही है और पूरी दुनिया ने ये सुना कि आतंक की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कैसे स्नेहा दुबे ने किया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस देश को अब प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इमरान को यूएन के मंच से एक ऐसा करारा जवाब मिले जिसे वे सुने और सुनने के बाद विचार करें। हालांकि इमरान से अपेक्षा की नहीं जा सकती विचार करना, क्योंकि इमरान उस देश के निवासी हैं जिसका वजूद ही भारत के विरोध पर खड़ा हुआ है। बहरहाल हम इस समय न्यूज रूम से अपने सहयोगी सोहन के साथ जुड़ते हैं। सोहन, आज देश को प्रधानमंत्री से क्या उम्मीदें हैं? देखिए दिवाकर जी, जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है, उसका जवाब भारतीय राजनयिक ने किस तरह से दिया वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे तो उस पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी, खासतौर पर पाकिस्तान की नजरें भी रहेंगी और ये पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान भी जानता है कि उसे करारा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उसने बयान दिया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो कहीं ना कहीं माफी के लायक बिल्कुल नहीं है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी सोचने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि क्या यूएनजीए का इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उम्मीद ये करेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे तो बड़े बड़े मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही, अफगानिस्तान को लेकर के चर्चा होगी, उसके अलावा पाकिस्तान को लेकर के चर्चा होगी। और जिस तरह से पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, वहां पर किस तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनका किस तरह से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, किस तरह से जबरन जो अल्पसंख्यक है उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, महिलाओं के साथ में जबरदस्ती वहां पर की जा रही है, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो तमाम मुद्दे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है। भारत पर सवाल उठाने से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह जरूर सोचना चाहिए था कि अगर वो किसी तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा, इमरान खान को जरूर मिलेगा। भारत ने जवाब दे तो दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन पर नजरें रहेंगी और उम्मीद तो यही की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे तो पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जी, इस देश का जनमत जो है वो चाहता है, वो ये चाहता है कि प्रधानमंत्री आज जवाब दें। लेकिन जो मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री जवाब का जो उनका अंदाज होगा उसमें पाकिस्तान का जिक्र वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र कर देने का मतलब है कि पाकिस्तान को एक अहमियत मिल जाएगी और भारत, कम से कम प्रधानमंत्री अपने मुंह से पाकिस्तान शब्द का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो जब आतंकवाद का जिक्र करेंगे तो इस एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तथाकथित ये तालिबान सरकार, तुर्की और उन तमाम देशों को आज ये जवाब मिलेगा कि वास्तव में आतंक की जो लड़ाई भारत लड़ रहा है अब वो अकेले अपने दम पर लड़ रहा है, जिसको लड़ने में फिलहाल अमेरिका भी अपने आप को असक्षम पा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये स्थिति है आज संबोधन में? तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान का जिक्र अगर भारत करता है तो वो पाकिस्तान के लिए खुद में बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद भारत के सामने क्या है वो आप जानते हैं। चाहे आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए, चाहे आप मानवाधिकारों की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी मुद्दे पर ले लीजिए, पाकिस्तान का जिक्र करना ही पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है। आपने कहा आतंकवाद का आपने जिक्र किया, जो शब्द आतंकवाद का आपने जिक्र किया उसके पीछे मुझे तो पाकिस्तान छुपा हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह मिलती है और जिस तरह से स्नेहा दुबे ने भी साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान में जो है आतंकियों के लिए जमीन तैयार की जाती है, उन्हें हथियार मुहैया कराए जाते हैं, उन्हें बिल्कुल वो इसलिए कि हक्कानी नेटवर्क, तालिबान के जितने छिपे हुए लोग थे जो आज सरकार में आए हैं, ये सब पाकिस्तान के ही थ्रू तो पहुंचे हैं अफगानिस्तान। हक्कानी नेटवर्क का सारा कुछ जुड़ाव और
जितने भी उसके नेता हैं और साथ ही साथ मुल्ला उमर के जितने रिश्तेदार हैं, ये सब पाकिस्तान से हैं। तो अब तो और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए, जिस वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का ऐलान हुआ और जिसको मारने के लिए, जिसको पकड़ने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, वो लादेन भी पाकिस्तान में ही मारा जाता। तो आतंक की फैक्ट्री तो है ही, और वो आतंक की फैक्ट्री जो है वो काम तो अभी भी वहां कर रही है। और उसी व्यक्ति के मुंह से यूएन जनरल असेंबली में इस तरीके की बात भारत के खिलाफ निकलती हो, तो सिर्फ हम आतंकवाद पर ही उसको घेरेंगे, ऐसी इससे बात बनने वाली नहीं है। बल्कि जो स्नेहा दुबे ने आज बाकायदा पीओके का जिक्र किया, माफ करिएगा, शुक्रवार के दिन, वो बात अब सामने आनी चाहिए और शायद पीओके भी अब एक मुद्दा बनेगा प्रधानमंत्री के संबोधन में। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, और ये मुद्दा बनना भी चाहिए। जिस तरह से स्नेहा दुबे ने साफ तौर पर कहा कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस पर जिस तरह से पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, तो उसको वहां से उस कब्जे को हटा देना चाहिए। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन है उसमें होगा। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान से बड़े बड़े मुद्दे भी दुनिया में हैं। और जिस तरह से अफगान संकट पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बात करेंगे। आपने हक्कानी नेटवर्क का जिक्र किया कि किस तरह से हक्कानी नेटवर्क जो है काम करता है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वो बताना चाहता हूं कि आखिर हक्कानी नेटवर्क काम कैसे करता है। हक्कानी नेटवर्क का आखिर काम क्या है? जो तालिबान फंड इकट्ठा करता है उसकी पूरी जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को होती है। कहां पर किस तरह से जो आतंकी गतिविधियां रही हैं उनमें हक्कानी नेटवर्क का बड़ा हाथ माना जाता है। और आपको एक चीज और मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान से जब तालिबान की जड़ें खत्म करने के लिए पहल शुरू की थी, तो उसके बाद उन तालिबान के जो लड़ाके थे उन्हें संरक्षण कहाँ प्राप्त हुआ था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से पाकिस्तान ने उन्हें संरक्षण दिया था। और अब जब वापसी उनकी अफगानिस्तान में तालिबान की हुई है, तो उसमें किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसका भी बड़ा हाथ है, ये भी पूरी दुनिया जानती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की मदद, चाहे आप इंफॉर्मेशन को लेकर के ले लीजिए, चाहे आप फंड को लेकर के ले लीजिए, तो वो पूरी जो मदद है वो कहीं ना कहीं तालिबान को पाकिस्तान से मुहैया कराई गई है। और जो ये वित्तीय मदद मुहैया कराई गई है वो कहीं ना कहीं तालिबान के लिए बेहद अहम साबित हुई है। और जो कब्जा अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है उसके पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। अब सवाल, कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बड़ा सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान ने पूरे तालिबान को क्रिएट किया, तालिबान एक आतंकी संगठन से जुड़ा, तालिबान के 5 से 7 नेता जो हैं वो बाकायदा मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं। आज उसी पाकिस्तान की सारी कारस्तानी को पूरी दुनिया प्रकारांतर से एक्सेप्ट कर चुकी है। शायद आपको लग नहीं रहा है कि इसी कारण से इमरान का जो अंदाज था इस बार यूएनजीए के संबोधन में, उसमें उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। और यह कॉन्फिडेंस नजर आने के पीछे कारण यह है कि जिस कश्मीर राग को पिछले वो 1.25 साल से अलाप रहे थे, उस कश्मीर राग पर एक नई धार उनको मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में सफल हो रहे हैं। और शायद यही एक ऐसा कारण है जिसके कारण प्रधानमंत्री का यूएनजीए का जो संबोधन होने वाला है, जिस संबोधन में वो दहाड़ लगाएंगे, ये एबी स्टार न्यूज के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री बहुत ही सख्त लहजे में इमरान का, पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर बहुत कुछ कहने वाले हैं, बहुत कुछ बोलने वाले हैं। सोहन, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद, क्वाड के सदस्य देशों के साथ मुलाकात करने के बाद, अब जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान को घेरने की एक व्यापक रणनीति बनी है और यूएनजीए में जो बात अब आने वाली है प्रधानमंत्री के मुंह से, उसको न सिर्फ पूरा विश्व मानेगा बल्कि अब भारत की राह पर यह विश्व अपने अंदाज में चलने के लिए बाध्य होगा। क्या लगता है आपको? देखिए, आपने कहा कि भारत के दिखाए रास्ते पर पूरी दुनिया चलेगी। मुझे स्वामी विवेकानंद का संबोधन याद आता है, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि जब दुनिया पर संकट आएगा तो भारत वहां पर विश्व गुरु बनकर उभरेगा। और इस वक्त जिस तरह का संकट दुनिया पर है, जिस तरह से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, ऐसे में भारत की भूमिका बेहद अहम है, ये पूरी दुनिया जानती है। अब अगर आप पाकिस्तान और चीन की आपने बात करी, क्वाड देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, जब उनके साथ में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी, तो साफ तौर पर संदेश दिया गया था कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, चीन को लेकर के मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि वहां पर हम शांति चाहते हैं। इसके अलावा ऑकस का जो है वो भी गठन किया गया है। वजह सिर्फ एक है, चीन का किस तरह से जो है वो वहां पर बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अब जो है कुछ ही देर में जो हमारे इनपुट हेड हैं शोएब जी, उन्होंने जानकारी दी है कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है। जो तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद हैं, एनएसए डोभाल भी वहां पर मौजूद हैं, और कुछ ही देर में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम आपको जो प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो पूरी तरह से क्या कुछ प्रधानमंत्री कहेंगे वो अपने दर्शकों को बारीकी के साथ पहले वो तस्वीरें दिखाएंगे, प्रधानमंत्री का संबोधन सुनाएंगे, साथ ही साथ उस पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह से ऑकस का गठन किया गया है, जिस तरह से क्वाड देशों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई है, साफ शब्दों में चीन के लिए संदेश गया है, पाकिस्तान के लिए संदेश गया है कि अगर पाकिस्तान के लिए संदेश ये गया है कि अगर आपकी जमीन पर आतंकी पनपते हैं, आतंकियों को जगह मिलती है, तो फिर आपको वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए। कमला हैरिस के साथ में जब मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तो साफ तौर पर कमला हैरिस ने भी ये माना था कि पाकिस्तान में आतंकियों को तैयार किया जाता है, पाकिस्तान में आतंकियों को संरक्षण मिलता है। रही बात दिवाकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं यूएन जनरल असेंबली में, और तस्वीरें जो है मैं चाहूंगा बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं कि आप एबी स्टार न्यूज से बिल्कुल मत हटिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन यूएनजीए में होने वाला है और उस संबोधन के साथ हम आपको जोड़ने जा रहे हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री सीधा जवाब देंगे उन देशों को जिन्होंने भारत की खिंचाई करने की कोशिश की है। ओवर टू वॉशिंगटन। जी, His Excellency Mr. आपको Abdullah अध्यक्ष पद संभालने की First of all, I would like to हार्दिक बधाई। warmly congratulate you on आपका अध्यक्ष assuming बनना the office of President of the सभी UNGA. विकासशील देशों Your becoming President और is a विशेषकर matter of pride for all developing small countries island developing and states के in लिए particular for small island गौरव की developing बात है। states. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, गत 1.5 वर्ष से for the last 1.5 years, पूरा विश्व the world 100 has साल में been आई सबसे grappling with बड़ी the worst pandemic महामारी का it has सामना seen कर in 100 years. ऐसी भयंकर महामारी में I pay tribute जीवन to गंवाने all वाले those who have lost their lives सभी लोगों in को the deadly corona मैं pandemic, श्रद्धांजलि देता हूं और and परिवारों I के साथ express my condolences संवेदनाएं व्यक्त to करता हूं। their families. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, मैं उस देश का I प्रतिनिधित्व कर रहा represent हूं a country जिसे that मदर is ऑफ proud डेमोक्रेसी का to be गौरव known हासिल as the mother of democracy. लोकतंत्र की हमारी We have हजारों had वर्षों की a महान great परंपरा रही। tradition of democracy that goes back thousands of इस years. 15 अगस्त को On 15th of भारत ने August this year, अपनी आजादी के India entered 75वें the साल में प्रवेश 75th किया। year of its independence. हमारी विविधता Our diversity हमारे सशक्त लोकतंत्र is की the पहचान है। identity of our strong एक ऐसा democracy. देश It is a country जिसमें that has दर्जनों भाषाएं dozens हैं, of languages, सैकड़ों बोलियां हैं, hundreds of dialects, अलग अलग रहन सहन different खान पान। lifestyles and cuisines. ये वाइब्रेंट This is डेमोक्रेसी the का best बेहतरीन example of a उदाहरण है। vibrant democracy. ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। The strength of our एक democracy छोटा बच्चा is demonstrated जो by the कभी fact that a little एक boy रेलवे स्टेशन who के at टी one स्टॉल पर time used to help अपने his पिता father की मदद at करता his tea था, stall at the railway आज station is today चौथी बार addressing भारत the के United प्रधानमंत्री के Nations तौर पर General Assembly for the fourth time यूएनजीए को as संबोधित Prime कर रहा Minister of India. सबसे लंबे समय तक I will soon गुजरात have का spent 20 मुख्यमंत्री years
serving और my फिर countrymen as पिछले head of 7 साल government. से First, as the भारत longest के serving प्रधानमंत्री Chief के Minister तौर पर of मुझे Gujarat, and then Head of as Government Prime की Minister भूमिका में for the last 7 years. देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और And मैं अपने I अनुभव am से कह saying रहा this to हूं, you from my own Yes. experience. Yes, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर. democracy can deliver. यस, Yes, डेमोक्रेसी हैज democracy डिलीवर. has delivered. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, एकात्म मानव दर्शन के today is प्रणेता the birth anniversary पंडित of दीनदयाल Pandit उपाध्याय जी की आज Deen जन्म Dayal जयंती. Upadhyay, the proponent of Ekatma Manav Darshan. एकात्म मानव दर्शन यानी Ekatma Manav Darshan इंटीग्रल means ह्यूमनिज्म, integral humanism, अर्थात or स्व से the development समष्टि journey तक undertaken विकास together, और the विस्तार की expansion सहयात्रा. from the self to the universe, expansion of the self, expansion of the self, moving from moving individual to from the the society, individual to society, the nation to the nation, and entire and humanity. to entire humanity. और ये चिंतन And this philosophy अंत्योदय को is समर्पित है. dedicated to Antyodaya. अंत्योदय को आज की परिभाषा The में modern day where definition no one of is left behind कहा Antyodaya जाता है. is where no one is left इसी भावना behind. के साथ It is with this principle आज in mind that India integrated, today is moving equitable forward on the path of development की राह पर आगे बढ़ integrated, रहा है. equitable development. विकास Our priority is सर्वसमावेशी हो, that development should be all-inclusive, सर्वस्पर्शी हो, all-pervasive, सर्वव्यापी हो, universal, सर्वपोषक and हो. one that nurtures all. यही हमारी प्राथमिकता है. बीते 7 वर्षों में During the last 7 years, भारत में India has 43 brought करोड़ over से ज्यादा लोगों को 430 million people बैंकिंग who व्यवस्था were से जोड़ा previously गया है, unbanked into जो the अब banking तक system. इससे वंचित थे. आज Today, 36 over करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को भी 360 million people बीमा सुरक्षा who कवच मिला है, earlier could not पहले even imagine इस बारे में this सोच was भी नहीं possible, now have insurance coverage 50 as करोड़ से security ज्यादा लोगों को by giving over 500 मुफ्त इलाज million की people सुविधा देकर the facility of free भारत ने treatment in hospitals. उन्हें क्वालिटी India हेल्थ has सर्विस से given them जोड़ा. access to quality health भारत ने services 3 करोड़ by पक्के घर building बनाकर 30 million बेघर, proper homes. यानी India has made होमलेस परिवारों को homeless families होम ओनर्स बनाया. homeowners. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, प्रदूषित पानी polluted water भारत ही नहीं is a very big पूरे problem, विश्व not just for और India, खासकर but for the entire गरीब और world, and in विकासशील देशों particular की for poor and बहुत developing बड़ी countries. समस्या है. भारत में इस चुनौती से निपटने के लिए In order to address this हम challenge 17 in करोड़ से India, अधिक घरों we तक are carrying out a very big पाइप से campaign to ensure साफ that पानी piped पहुंचाने clean का बहुत बड़ा water अभियान reaches चला रहे हैं. over 170 million विश्व homes. की बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने Reputed institutions of the ये world माना है have कि said किसी भी देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों के पास जमीन और घर के प्रॉपर्टी राइट्स यानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है. दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है. आज हम भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं. ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट
बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। और ये हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने विश्व को यह भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक
और भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। और इस अभियान में भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। साइंस बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने के लिए भारत एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। हमारे यहां स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई हैं, इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा।
रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमणात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। मैं नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शुभो कर्मोपोथे, शुभो कर्मोपोथे, धोरो निर्भयो गान, सौब दुर्बल सौन्योष होक अवसान। अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सुना आपने किस तरीके से यूएनजीए के संबोधन में प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है और उस संदेश में भारत की शक्ति, भारत का ताकत, उसका एहसास कराते हुए सीधे प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि दुनिया को आगे बढ़ना है तो चाणक्य की एक सोच के साथ, और ये है कि अगर हमने समय रहते किसी बातों को ध्यान में नहीं रखा और समय से वो कार्य नहीं किया जो किया जाना चाहिए तो समय ही हमें
महत्वहीन बना देगा। एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कहने की कोशिश की है यूएनजे के मंच से, और साथ ही साथ इसी मंच से उन्होंने यूएन को एक नसीहत दे डाली कि अपनी प्रासंगिकता को साबित करने के लिए यूएन को अपने क्रियाकलापों पर, अपने कार्य पद्धति पर विचार करना होगा। प्रधानमंत्री ने इमरान खान की तरह, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और सीधा आक्षेप और आरोप उन्होंने यूएन के माध्यम से जिस तरह से भारत के ऊपर लगाया, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी नहीं किया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम लेंगे भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान की वो स्थिति ही नहीं है कि किसी एक ऐसे मंच से जहां पूरी दुनिया भारत को सुन रही हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान का जिक्र किया, और उस जिक्र में उन्होंने कहा कि जो कट्टरता और जो फिरका परस्त ताकतें और जो आतंकी शक्तियां इस समय प्रभावी हो रही हैं पूरे देश के स्तर पर, वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है। और शायद प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार पर भी एक कटाक्ष किया है, और सीधे सीधे पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि भारत किसी के पीछे नहीं चलेगा। भारत वो है जो पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द कायम करने के लिए काम करेगा, और वो शांति और सौहार्द सिर्फ भारत ने जो पहल की है और पूरी दुनिया को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश की है। खास करके प्रधानमंत्री ने कोविड का जिक्र किया, जो कोविड डिप्लोमेसी के तहत प्रधानमंत्री ने अपने सारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम और डेवलप किए जा रहे वैक्सीन के बारे में जानकारी दी, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को भारत के साथ जुड़कर मिलकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि आतंकवाद और कट्टरता जो पूरी दुनिया के लिए, दक्षिण एशिया के लिए, पूरे एशिया के लिए समस्या की जड़ बन रही है, भारत उसका पुरजोर विरोध करेगा, और उसे खत्म करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया। तो साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री ने इमरान खान के उस प्रोपेगेंडा का बहुत ही ऐसे अंदाज में जवाब दिया जो इमरान खान की सारी बातें, उनके अपने जो फ्रस्ट्रेशंस थे, उसका एक माकूल जवाब मिलते हुए ये बताया गया कि प्रधानमंत्री इमरान खान जो पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किस तरीके से यूएन के मंच से उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को खराब करने के लिए, वैश्विक शांति के लिए जो जरूरत होती है उसका प्रयोग नहीं किया, और यूएन के मंच का वेजा इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ जब भारत के प्रधानमंत्री ने यूएन को संबोधित किया तो न सिर्फ शांति का संदेश दिया, बल्कि भाईचारा कायम करने के लिए, दुनिया के सामने आने वाले उन तमाम मुश्किलों का सामना करने के लिए भारत ने कोविड के दौरान दुनिया के साथ जिस तरह से कदम मिलाकर आगे चलने का निश्चय किया, प्रण किया, और भारत आगे बढ़ा। भारत ने साफ संदेश दिया है कि भारत ऐसा ही करता रहेगा, और पूरी दुनिया को उन्होंने यूएन के माध्यम से ये नसीहत दी कि समय रहते अगर सही फैसले और सही कार्य नहीं किए जाएंगे तो समय ही व्यक्ति, राष्ट्र या किसी पहल को महत्वहीन कर देगा। प्रधानमंत्री ने एक बड़े संबोधन में, और संक्षिप्त था लेकिन बातें बहुत गहरी थीं, बड़ी थीं, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को श्रेष्ठ भारत का संदेश तो दे ही दिया है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।